ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام حسنہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں ایک ہی بہن تھی، میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میں ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ میں جو بات ابا کو کہتی، ابا فوراً سے مان جاتے تھے۔ سب ابا کو کہتے تھے تم نے اپنی بیٹی کو بگاڑ رکھا ہے، لیکن میرے ابا سب کو یہی کہتے تھے، انہیں اپنی بیٹی پر یقین ہے۔ کالج ختم ہونے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکا اچھا لگنے لگا جس سے مجھے محبت ہونے لگی تھی۔ پہلے تو وہ میرا دوست تھا، لیکن ایک دن اس نے مجھے خود ہی بتا دیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کو اس بارے میں بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہیں، تو اماں نے مجھے کہہ دیا کہ تمہارے ابا اس کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اماں کو کہا کہ ایسا تو نہ بولیں، ابا میری ہر بات مانتے ہیں، دیکھنا یہ بھی مان جائیں گے۔ لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ ابا سے تم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی۔ لیکن میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں ابا کو منا لوں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا ابا میری کوئی بات رد نہیں کریں گے۔ لیکن اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں ابا سے کیسے بات کروں، کیا کہوں ابا کو۔ اگر ابا غصہ کر کے تو میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی۔ آج میں یونیورسٹی میں خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اماں مجھے بول رہی تھیں کہ تم ابا سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یار پلیز ابا سے بات کرنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو میں نے کبھی کہا ہے کہ میں تمہارے بنا رہ سکتی ہوں؟ میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھی اگر شادی کی تو تم سے ہی کروں گی، میں نے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، ہمارے جیسے سچے ہیں ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ابا سے بات کرنی پڑے گی، جیسے بھی کر کے مجھے ابا کو منانا ہوگا۔ میں یہی سوچ رہی تھی۔ جب میں گھر آئی تو میں نے اماں کو کہا، اگر آپ ابا سے بات نہیں کر سکتی تو میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ اماں میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم خود ابا سے بات کرو گی؟ میں نے اماں کو دیکھ کر کہا، اگر آپ نہیں کریں گی تو میں خود ہی کروں گی نا۔ میں یہ کہہ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کا وقت تھا۔ میں ابا کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے ابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا بات ہے، پریشان کیوں لگ رہی ہو، کوئی بات کرنی ہے کیا؟ ابا کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابا کہنے لگے، کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا، ایک بات کرنی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بات کرنی ہے، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں کسی سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابا میری طرف دیکھنے لگ گئے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگے، اس سے کہو رشتہ بھیجے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور کہا، ابا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ابا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ابا کی خاموشی سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ جیسے ابا خاموش ہو کر چلے گئے تھے، میں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے اس کو کال کی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ پہلے تو کبھی اس نے نمبر یوں بند نہیں کیا تھا، نہ جانے وہ مصروف ہوگا۔ میں یہی سوچتی ہوئی اس سے میسج کرنے لگ گئی۔ کافی وقت گزر گیا، اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے موبائل رکھ دیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گئی۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میرا موبائل مسلسل بجنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا تو سامنے اسی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کال پک کی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، میں سو گیا تھا، تمہاری کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے غصے میں کہا، تمہیں سونے کی پڑی ہوئی ہے، میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے ابا سے بات کی ہے۔ وہ بے تابی سے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا کہا تمہارے ابا نے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ابا مان گئے ہیں۔ وہ ایک دم سے خوش ہوا اور مجھے کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا، میں بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ مجھے کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم نے اپنے ابا کو منا لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ابا کہہ رہے تھے
कि रिश्ता भेजो। वो कहने लगा जल्द ही भेजूंगा। इसके बाद उसने जल्द ही रिश्ता भेज दिया। बाकी सब कुछ तो ठीक था, मगर मुझे उसकी अम्मा का रवैया बहुत अजीब लगा था, जैसे वो खुश नहीं थी। एक दिन मैंने यूं ही उससे पूछा कि तुम्हारी अम्मा इस रिश्ते से खुश नहीं है क्या? उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम तो मेरी अम्मा को बहुत पसंद हो। मैं थोड़ी हैरान होती। वो कहता है कि मैं उसकी अम्मा को बहुत पसंद हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं उसकी अम्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही थी वो मुझे परेशान परेशान लग रहा था। आज मेरी मेहंदी थी। मेहंदी के फंक्शन के बाद मैंने उससे कॉल की। काफ़ी देर बाद उसने मेरी कॉल पिक की। जैसे ही उसने मेरी कॉल पिक की, मैंने उससे फ़ौरन से पूछा, कहाँ थे, कब से कॉल कर रही हूँ? वो मुझे कहने लगा, कहीं बस मसरूफ़ था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे परेशान लग रहे हो। वो मुझे कहने लगा, नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। मैंने कहा, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने उससे कहा तो वो मुझे कहने लगा, कल मुलाकात होगी। उसने ये कहकर कॉल कट कर दी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे खुद भी बहुत अजीब लग रहा था। न जाने उससे क्या हो गया था, क्यों उसने ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ था। अगले दिन मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। आज मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। अब मुझे समझ आई थी, मेरा शौहर सच ही कहता था कि उसकी अम्मा को मैं बहुत पसंद हूँ। आज तो उसकी अम्मा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, जैसे मैं उनकी सगी बेटी हूँ। वो मुझे कमरे में छोड़ गई। मैं कमरे को देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली। मेरी सास मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर इस घर में लाई हूँ। मुझे तो अपनी सास का इतना मीठा रवैया ही परेशान करने लग गया था। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, जो कि मुझे देखकर बोल रही थी। फिर वो कमरे से चले गईं। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया और आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने उसकी तरफ देखा, वो खामोश बैठा हुआ था, कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या हुआ है, आप क्यों परेशान हैं? वो मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा कि पहले आपकी अम्मा मुझे इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही थी, और अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप खुश नहीं हैं। वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? क्या सोचकर तुमने कहा है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ? मैं पागल हूँ जिसने सब घर वालों से लड़कर तुमसे शादी की है, और तुम कह रही हो कि मैं खुश नहीं हूँ? उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि क्या मतलब लड़कर? वो अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए कहने लगा, कुछ नहीं। उसके बाद वो मुझसे बातें करने लग गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। मेरी सास मेरे लिए नाश्ता लेकर कमरे में आई। मैंने अपने शौहर के बारे में पूछा। उनके चेहरे में एकदम से मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं थोड़ी हैरान हुई थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया था, वो क्यों परेशान हो गई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों परेशान हो गई हैं? मैंने अपने शौहर के बारे में पूछा है। वो मुझे कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गईं। उनके जाने के बाद मेरा शौहर कमरे में आया और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है, अम्मा ने कोई बात की है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है ये सब। वो मुझे देखकर कहने लगा, क्यों, क्या हुआ है, किससे परेशान हो गई हो? मैंने नफी में सर हिला दिया। शादी के कुछ दिन तक तो मुझे बिल्कुल भी अपनी सास की समझ ना आई कि उनका रवैया क्यों मेरे साथ ऐसा है। वो ऐसे कैसे करती हैं? कभी ऐसे लगता था जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और कभी ऐसे लगता था जैसे उन्हें मुझसे बहुत नफरत हो। शाम का वक्त था, मैं कमरे में बैठी हुई थी। इतने में मेरा शौहर आया और मुझे कहने लगा, चलो बाजार चलते हैं शॉपिंग करने। मैंने हैरत से कहा, क्या हो गया है, किस चीज़ की शॉपिंग करनी है आपने? वो मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, पहली लड़की हो जो शॉपिंग से मना कर रही हो, चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। वो ये कहकर मुझे बाजार लेकर आया और मुझे महंगा सा जोड़ा लेकर दिया और मुझे घुमाने भी लेकर गया। मैं बहुत खुश थी आज, वो भी मुझे बहुत खुश लग रहा था। घर आते ही वो मुझे कहने लगा, जो मैंने तुम्हें जोड़ा लेकर दिया है वो पहन कर दिखाओ मुझे। मैंने हैरत से कहा, अभी इस वक्त? वो मुझे कहने लगा, क्या हो जाएगा, मुझे डालकर दिखाओ ना। मुझे हैरत हो रही थी, उसने मुझे इतना महंगा सूट लेकर दिया था और अभी ही मुझे डालने का कह रहा था, और मैंने डाल लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसने मुझे डालने को क्यों कहा था। कोई तो वजह थी। वो काफ़ी देर मुझे देखता रहा। वो मुझे परेशान परेशान लगने लग गया। थोड़ी देर पहले तक वो बहुत खुश था। मैंने आज उससे पूछा भी ना कि वो क्यों परेशान लग रहा है,
क्योंकि वो मुझे कुछ बताता भी तो नहीं था। सुबह मैं किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। इतने में मेरी सास किचन में आई और मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगी। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रही हैं? वो मुझे देखकर कहने लगी कि सोच रही हूँ तुम्हारा क्या बनेगा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब, मेरा क्या बनना है? वो मुझे कहने लगी, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कि तुम्हारा क्या बनना है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने क्या गलती की है, तुम्हारा कसूर क्या है। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही थी कि वो मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहें ना। वो मुझे कहने लगी, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। वो ये कहकर वहाँ से चली गईं और मुझे परेशानी में डाल कर चले गईं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनके कहने का क्या मतलब था। जब मैंने इस बारे में अपने शौहर को बताया, पहले तो वो परेशान हुआ, फिर मुझे कहने लगा, अम्मा की बातों पर ध्यान न दिया करो, बस उन्होंने यूं ही कह दिया होगा और तुम परेशान हो गई हो। उसने मुझे दिलासा दिया कि अम्मा ने वैसे बात की होगी। इसके बाद मैं अपने शौहर की बातों पर अमल करके अपनी सास की बातों पर ध्यान न देती थी। वो मुझे जो कुछ भी कह देती, मैं आगे से हंस देती थी, और जब मैं हंसती तो न जाने मेरी सास को गुस्सा क्यों आ जाता था। मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि मेरी सास मुझसे प्यार करने का ड्रामा करती है। असल में उन्हें मैं जहर लगती हूँ, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि मैं उन्हें जहर लगती क्यों हूँ। इनका रवैया मेरे साथ क्यों इतना बुरा होता है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जिस वजह से वो मेरे साथ ऐसा करती हैं? मैंने गहरी सांस ली। आज रात को फिर से मेरा शौहर मुझे कहने लगा, मैं घर में बोर हो रहा हूँ, चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सारे दिन की, मुझसे कुछ नहीं होता, इस वजह से मैं नहीं आपके साथ बाहर घूमने आ सकती। वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ है, तुम ही सारे घर के काम करती हो जो थक गई हो। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया और कहा, बस मैं थकी हुई हूँ, मुझसे नहीं आया जाता। वो मुझे कहने लगा, मैंने बस कुछ नहीं सुनना, तो मेरे साथ चलो। वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर बाहर आया। पहले तो उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई, फिर वो मुझे काफ़ी जगहों पर घुमाता रहा। मैं बहुत खुश थी। वो मुझे कहने लगा, अब अगर कहा ना कि तुम्हारी थकावट नहीं उतर रही। मैंने उससे कहा कि तुम कितने अच्छे हो। वो मुझे देखने लगा। शादी से पहले भी तो कहा था कि जैसा मैं हूँगा ऐसा पहले किसी का शौहर नहीं होगा। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। काफ़ी देर घूमने के बाद वो मुझे एक मॉल में लेकर आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी पसंद का सूट लेकर देता हूँ। उसने एक महंगा सा सूट मुझे लेकर दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, पहले भी तो आपने इतना महंगा जोड़ा मुझे लेकर दिया था। वो मुझे कहने लगा, अजीब लड़की हो, यहाँ कोई और लड़की होती तो उसने इतना खुश होना था, और तुम हो के परेशान हो रही हो। मैंने क्यों तुम्हें जोड़ा लेकर दिया है? मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर हम लोग घर आ गए। घर आते ही मेरे शौहर ने वो जोड़ा सबसे पहले अपनी अम्मा को दिखाया। उसकी अम्मा इस जोड़े को अजीब नज़रों से घूरने लग गई। मुझे लगा जो मेरे शौहर ने मुझे इतना महंगा जोड़ा लेकर दिया है, इस वजह से उनको इतना गुस्सा आ गया है। मेरी सास मेरे शौहर को कहने लगी, तुम लोग जाओ, मैं ये जोड़ा देखकर तुम्हारे कमरे में दे आती हूँ। मैं और मेरा शौहर कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद मेरी सास वो जोड़ा लेकर आई और हमें दे दिया। मैंने हैरत से अपनी सास को देखा। इनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट छाई हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। जब मेरी सास कमरे से बाहर गई तो मेरा शौहर मुझे कहने लगा, मुझे डाल कर दिखाओ ये जोड़ा। मैंने हैरत से कहा, इस वक्त मैं कैसे डाल कर दिखाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है ना। वो मुझे देखते हुए कहने लगा, कुछ नहीं होता। मैंने भी बहुत मुश्किल से वो जोड़ा डाला। मैंने जैसे ही वो डाला, नींद से मेरी आंखें बंद होने लग गई थीं। मुझे कुछ समझ ना आई और मुझे एहसास भी ना हुआ कब मैं नींद की वादियों में चली गई। यूँ अगले दिन सुबह सुबह मेरी आंख खुली। मैं वही जोड़ा डाले सो गई थी। इतने में मेरी सास आई और मुझे कहने लगी, अब उठकर किचन में भी आ जाओ, सुबह से मैं अकेली काम कर रही हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मैं जल्दी से उठी, मुँह हाथ धोकर किचन में आ गई और कामों में मसरूफ़ हो गई। न जाने क्यों मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी। मैंने अपनी सास को इग्नोर कर दिया और अपने कामों में मसरूफ़ रही। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरी सास मुझे किन नज़रों से देखती है या क्या करती है। मेरा शौहर काम पर चला गया था। दोपहर का वक्त था। मैं यूं ही कमरे में बैठी हुई थी। इतने में मेरी सास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, मेरे साथ बाहर आओ। मैंने कहा, किधर? वो कहने लगी, आओ तो सही। मैं उनके साथ बाहर आई तो सहन में एक बाबा बैठा हुआ था। मैंने हैरत से अपनी सास से पूछा, ये कौन है? मेरी सास मुझे कहने लगी, खामोश होकर बैठो, बाद में बताऊंगी। न जाने क्या वो बाबा मुझ पर पड़कर फूंक मारता रहा।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी सास ने मुझे खामोश बैठे रहने को कहा था और अब मैं खामोशी से बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो बाबा चला गया। मैंने अपनी सास से पूछा, ये कौन था? मेरी सास कहने लगी, बाबा था, इसे दम करवाया है तुम्हें बुरी नज़र से बची रहो। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। उन्हें कब से मेरी इतनी फिक्र लग गई थी। आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल रखने लग गई थी। न जाने उन्हें अचानक से क्या हो गया था। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते ही मेरा सर चकराने लग गया। न जाने मुझे क्या हो रहा था। मैंने गहरी सांस ली और बेड पर लेट गई। मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं कब सो गई हूँ। शाम के वक्त मेरे शौहर ने आकर मुझे जगाया और मुझसे पूछने लगा, तुम ठीक हो क्या? उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से मुझे क्या हो गया था, क्यों ऐसे मैं सो गई थी। मेरा शौहर अभी वहीं पर बैठा हुआ था। इतने में मेरी सास आ गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरी सास कहने लगी, मैं इतनी बार तुम्हें उठाने आई थी, मगर मजाल है जो तुम एक बार भी उठी हो। मैंने अपनी सास को कहा, अगर मुझे पता होता कि आप उठाने आएंगी तो मैं सोती ही ना। मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा, फिर कमरे से बाहर चले गई। मेरा शौहर मुझसे पूछने लगा, अम्मा से कोई बात हुई है क्या? मैंने अपने शौहर को बताया कि कोई बाबा आया था, आपकी अम्मा ने इससे मुझे दम करवाया था। इसके बाद मैं सोई ही रही थी। न जाने आपकी अम्मा मुझ पर क्या दम दरूद करवाती फिर रही हैं। मैंने संजीदगी से कहा। मेरा शौहर हैरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अम्मा तुम्हारे लिए ही करती हैं जो कुछ भी करती हैं। तुम परेशान मत हुआ करो। अम्मा बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं तुम्हारा। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती हैं। मैंने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं कौन सा कह रही हूँ कि आपकी अम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, या फिर ऐसा कुछ और कहा। वो मुझे कहने लगा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो फ्रेश हो जाओ। इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई और काम करने लगी। मेरी सास मुझे कहने लगी, छोड़ो मैं खुद कर लेती हूँ। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं था, फिर ऐसे मुझसे गुस्से में क्यों बात कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और मैं बाहर आकर बैठ गई। इतने में मेरा शौहर कहने लगा, क्या हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपकी अम्मा का झगड़ने को दिल कर रहा है। मेरी सास मुझे गुस्से में देखकर कहने लगी, मैंने कब तुमसे झगड़ा किया है? मैंने अपनी सास को घूर कर देखा, मगर कोई बात न की। मैंने गहरी सांस ली और उठकर कमरे में आ गई। मेरा शौहर पीछे आया और कहने लगा, क्या हो गया है यार, चलो तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, मूड ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, बाहर चलते हैं। मैंने उससे कहा और हम दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर मेरा मूड भी अच्छा हो गया। हम लोग एक जगह पर गए, वहाँ से डिनर किया। अचानक हमारे टेबल के पास एक लड़की आई और मेरे शौहर को देखने लग गई। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैडम तुम कौन हो? मेरा शौहर कहने लगा, मेरी कज़न है यार। मेरे शौहर ने उसे बैठने का कहा। वो भी बैठ गई और मेरे शौहर को अजीब नज़रों से घूरने लगी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, वो क्यों ऐसे मेरे शौहर को घूर रही है। मैंने गहरी सांस ली। मेरा शौहर उससे बातें कर रहा था। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। वो कब से उसी के साथ बातों में लगा हुआ था और मैं उसके मुंह की तरफ देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहने लगी, मैं अभी चलती हूँ, फिर मैं आपके घर आऊँगी। मेरे शौहर को वो ये कहकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने अपने शौहर को घूर कर देखा। मेरा शौहर मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ है, क्यों ऐसे परेशान हो गई हो? मेरी कज़न थी। मैंने गुस्से में कहा, हाँ कज़न थी या फिर कुछ और भी थी? जैसे आप हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो हंसते हुए मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अजीब लड़की हो, कब से तुम्हारे साथ हूँ, कब से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी शक कर रही हो। ये तुम लड़कियों की शक करने वाली आदत बहुत बुरी होती है। मैं बस उसके साथ बातें कर रहा था। मेरी कज़न थी, मुझे पता था तुमने तो इससे कोई बात नहीं करनी, इस वजह से मैं ही कर रहा था। अब मैं उससे ये तो नहीं कह सकता था तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगता कि इसके शौहर के साथ कोई बात करे। मैंने उससे गुस्से में घूर कर देखा और कहा, चलो यहाँ से। मैं उसके साथ घर आ गई। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आया हुआ था। आते ही मेरी सास ने पूछा, तुम्हारी कज़न मिली थी क्या? मुझे उसने कॉल पे पहले ही बताया है कि वो तुमसे मिली है। मेरा शौहर कहने लगा, हाँ जी मिली थी। क्यों, क्या हुआ? उसने आपको भी कॉल करके बता दिया? मेरी सास और वो बातें करने लगे। न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया था। मैं कमरे में चली गई। उसके बाद मैंने सोच लिया था अब मैंने किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना। मैं परेशान नहीं होती थी। रोज़ मेरा शौहर मुझे घुमाने लेकर जाता था। जब भी मैं किसी को बताती सब कहते कितनी खुशकिस्मत हो, कितना अच्छा शौहर मिला है। मेरे दोस्तें मेरी किस्मत पर रश करती थीं। शाम का वक्त था, मैं कमरे में आई। मुझे पैसों की ज़रूरत थी।
मैं अपने शौहर के पर्स से पैसे निकालने लगी। अचानक मेरी नज़र एक पर्ची पर पड़ी। वो पर्ची देखने लग गई जिस पर सब्ज रंग लिखा हुआ था। मैं हैरत से इस पर्ची को देखने लग गई। इतने में मेरा शौहर निकल आया और हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और कमरे से बाहर चले गए। कमरे से बाहर आकर मुझे न जाने क्या हो गया था, मैं वहीं पर बैठ गई। रात को मेरा शौहर मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुझे सब्ज रंग का ही जोड़ा लेकर दिया। मुझे हैरत हो रही थी, जैसा रंग लिखा हुआ था मेरे शौहर ने मुझे वैसा ही जोड़ा लेकर दिया। मैं थोड़ा हैरान हो गई थी कि उसने वो रंग पर्ची पर लिखकर क्यों डाला हुआ था। उस दिन के बाद मैं पहले इसका पर्स जरूर देखती थी। जो रंग लिखा होता था वो मुझे लेकर देता था। मैं इस बारे में जानना चाहती थी। एक रात वो मुझे लेकर गया और जो रंग लिखा हुआ था उसी रंग का जोड़ा लेकर दिया। लेकिन घर आते ही मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझसे नहीं डाला जाता। उसने बहुत ज़िद की डालने की, लेकिन मैंने भी ज़िद लगा ली कि मुझसे नहीं डाला जाता। मैं ये कहकर सोने के लिए लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख खुली तो मेरी रूह कांप गई। मेरा शौहर कमरे में मौजूद नहीं था। मैं इर्द गिर्द देखने लग गई। न जाने मेरा शौहर इतनी रात को कहाँ चला गया था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास के कमरे की लाइट चल रही थी। मैं उनके कमरे की तरफ गई। कमरे के अंदर से मेरे शौहर की आवाज़ आ रही थी, जो कि अपनी अम्मा को कह रहा था कि क्या हो गया है, एक रात उसने कपड़े नहीं डाले तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। मेरी सास कहने लगी, तुम जानते हो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, उससे अभी उठाकर डलवाओ ये कपड़े। मेरा शौहर कह रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उससे नहीं उठाऊंगा। वो ये कहकर कमरे से बाहर आने लगा। मैं साइड पर होकर छुप गई। मेरा शौहर कमरे से बाहर चला गया। इतने में पीछे से मेरी सास ने किसी को कॉल की और न जाने किससे क्या क्या बातें करने लग गई। अपनी सास की बातें सुनकर मेरी टांगों से जान निकलने लग गई। मैंने अपनी सास की सारी बातें सुनी, फिर गुस्से में अपने कमरे में आ गई। अब मुझे समझ आ रही थी मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों होती जाती थी। सारा दिन क्यों मुझे अपनी हालत अजीब सी लगती थी। तो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं अपने कमरे में आ गई। सामने मेरा शौहर खड़ा हुआ था। मुझे देखते ही बेचैनी से पूछने लग गया, किधर चली गई थी तुम। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मारना चाहते हो, मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो। जानते हो मैंने अपने बाप को खुद कहा था तुमसे शादी करने को। यही गलती थी मेरी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, जिस वजह से तुम मुझे मारना चाहते हो। वो मुझे हैरत से देखते हुए कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों ऐसे कह रही हो। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी अम्मा क्यों कहती थी तुम्हें कि अपनी बीवी को इस रंग का जोड़ा लेकर दो। क्यों वो तुम्हें कहती थी कि अपनी बीवी को बोलो कि वो जोड़ा डाले, और तुम अपनी अम्मा की हर बात मान लेते थे। वो मुझे कहने लगा, मेरे ख्याल में अब तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैंने गुस्से में कहा, हाँ बताओ। वो मुझे कहने लगा, जानती हो पहले मेरी मंगनी अम्मा की मर्जी से हुई थी, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी थी। अम्मा ने मुझे कहा कि वो लड़की तुम्हारे हक में बेहतर नहीं, लेकिन मैंने अम्मा से कहा मुझे तुमसे ही शादी करनी है। शादी के बाद अम्मा ने कहा कि फिर मैंने पीर साहब से बात की है, वो जैसे कपड़े लिख कर देंगे रात को वैसे ही डालने होंगे, तो इस वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, आपकी अम्मा अच्छा झूठ बोल लेती हैं, जानते भी हैं कि आपकी अम्मा की बातें सुनकर आई हूँ। आपकी अम्मा ने आपसे झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा उन्होंने आपको बताया। जानते हैं वो ये सब कुछ इस वजह से कर रही हैं, वो चाहती हैं कि हम दोनों में झगड़े हों। ये सब कुछ हमें अलग करने के लिए कर रही हैं। अगर आपकी अम्मा नहीं मान रही थी, ये सब कुछ उन्होंने करना था जिससे मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ती, तो ना करते आप मुझसे शादी। वो मुझे कहने लगा, सॉरी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अम्मा क्यों कर रही हैं ये सब। मुझे तो अम्मा ने कुछ ठीक से बताया भी नहीं था। सॉरी। वो मुझे बार बार सॉरी कह रहा था। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे यही डर लग रहा था अगर हम अलग हो जाते तो न जाने मेरा क्या होता। यही सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो एकदम से गुस्से में अपनी अम्मा के कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, आप अपनी अम्मा को कुछ न कहें, बस आप ऐसा महसूस करवाएं जैसे वो कह रही हैं वैसा ही हो रहा है। देखते हैं कब तक वो अपने अमल मुझ पर करवाती हैं। कोई बात नहीं अगर फिर भी हम जुदा हो गए। वो मुझे कहने लगा, पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता और ना ही मैं कोई रिस्क ले सकता हूँ। वो अपनी अम्मा के कमरे में चला गया, मगर मैं उसके पीछे न गई। उस दिन के बाद मेरी सास ठीक हो गई थी। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली अपने रवैये की वजह से। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।